हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोस्टग्रेजुएट मास्टर क्लास। और आज ना अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो व्हाट डज जॉइंट्स मीन, राइट? सो बेसिकली इट कंबाइंस कॉलम्स फ्रॉम वन, बेसिकली सर्च जॉइंट भी होता है, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा टेबल्स हो, राइट, इफ देयर आर मोर टेबल्स एंड बिटवीन दोज टेबल्स you want to sort of combine those columns, right? So we can certainly do that. So I'll in the notes I've attached this file, and when you go to this file will come something like this. Now what we are saying here कि हमने अब तक ना कोई एक टेबल की हमारे पास और उस टेबल पे हमने क्वेरी किया और उसका डेटा देखा. Now the idea is like कि if we have a student table and we have a course table, right? So I just want to know कि the student Anuj, what courses he has taken, right? So these kind of things I want to know. And here we need some kind of values that should be common, which is like this student ID. If you see here, this student ID is 1. And in the course, there's a column called as role ID, right? So if the student ID is 1 and the role ID is 1, this depicts that the person with this role ID or the students with this role ID 1 has taken math and English. The person with role ID 3 and 3 has taken French and Spanish. Now, what I want to do, I want to do something like this where I can say that I want the column name, and with the column name and the course name. So, for example, I want some result like this, that Anuj has taken the course Math, Anuj has taken the course English, this girl Smriti has taken the course French, Smriti has taken the course Spanish. So, ऐसा मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ. This is basically possible through joins, right? This is what joint means. That is combining the columns between different tables based on some same common value. So here you can see here it is the student ID and role ID. So this is how we can do it with through joins. Now what is inner joint, right? Inner joint का मतलब ये है कि आप inner joint का मतलब ये है कि जैसे कि अब इस क्वेरी को देखते हैं, राइट? तो इसमें हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? नेम और कोर्स नेम. नेम हम इसका सेलेक्ट कर रहे हैं, कोर्स नेम हम इसका सेलेक्ट कर रहे हैं. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ओके, बट स्टूडेंट टेबल में तो कोर्स नेम है नहीं. Then we say inner joint course, right? Don't worry about this inner part, worry about this joint part, joint course, right? So student joint course. So basically अब हमारे पास ये दो tables है, right? ये दो tables है, and we are doing it on student ID is equal to role ID. तो हम कह रहे हैं कि जब student ID role ID के बराबर होगा, उन सब चीज़ों के लिए हम join करेंगे. Now what does this mean, right? So what happens here कि let's say we go through this each column one at a time. Now I have a student ID with name Anuj, right? तो इस कॉलम इसको हमने देखा, फिर हम जाते हैं इस कॉलम के लिए, इस रो के लिए we go through all the rows of this course. Now let's see, does this row has student ID equal to role ID? Yes, it is, right? तो ये क्या होगा, ये हमारे रिजल्ट सेट पे आ जाएगा. एंड फॉर दिस यू कैन सी दैट कि ये हमारे रिजल्ट सेट पे यहाँ पे आके एक टेम्परेरी रो बन गई, which is Anuj, math, student ID and role ID. Now for this row again we go to the next one, we see ki one English, does it match this guy? Yes it does. So we have Anuj English 1 and 1. And for this it doesn't match with this, doesn't match with this. So this is inner join में ऐसा हो रहा है कि हम हर एक रो को देख रहे हैं और जो उस चीज़ पे हमने मैच करने की कोशिश की ऑन स्टूडेंट आईडी का रोल आईडी अगर ट्रू हो रही है तो हमारे रिजल्ट सेट में आ रहा है. तो टू अंकित वी सी दैट नन ऑफ दिस मैचेस, ईच रो रोल आईडी डजंट इक्वल स्टूडेंट आईडी. तो ये देखो इसका पार्ट नहीं है. दिस इज व्हाट इनर जॉइन मीन्स, where in both the cases it should match with each other. 3 Smriti, we check that it is there for this one, 3 French. So we have student ID 3, role ID 3, name and course name. So it is there. With this one, the last one, this is also there, right? So ये हमारा inner join होता है कि कहाँ पे हम लोग intersection दे पा रहे हैं. Basically idea है कि हर रो पे आप जाते जाओगे फिर देखोगे कि किससे मैच कर रहा है inner join में. अगर उससे मैच कर रहा है तो आप उसके सारे कॉलम्स यहाँ पे लगा देना, दोनों टेबल्स के मिला के, और फिर उस पे नाउ वी आर सेइंग कि वी ओनली वांट द नेम एंड द कोर्स नेम फ्रॉम दिस इनर जॉइन दैट हैज हैपेंड, नेम एंड कोर्स नेम, राइट? अब क्या होगा, हम ये दो कॉलम को हटा देंगे और हमारा रिजल्ट सेट में केवल नेम और कोर्स नेम आ जाएगा. तो ये हमारा इनर जॉइन होता है. दिस इज बेसिकली द इंटरसेक्शन विद स्टूडेंट एंड कोर्स. बेसिकली कि जब हम इसको देख रहे हैं तो ये किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको देख रहे हैं तो किससे इंटरसेक्ट कर रहा है. अगर नहीं कर रहा तो दिस वोंट बी पार्ट ऑफ द रिजल्ट सेट. इसमें देख रहे हैं तो किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो से कर रहा है, तो ये हमारे पार्ट ऑफ द रिजल्ट. दिस अबाउट द इनर जॉइन. जस्ट बिफोर दैट आई थिंक आई मिस्ड दैट आई वांट टू डिस्कस द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी. हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है. सबसे पहले हमारा फ्रॉम होता है, कौन सी टेबल से हम सेलेक्ट करना है, फिर हमारा वेयर होता था, फिर सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय, अनलिमिटेड एंड ऑब्सेंट. वेयर डज द जॉइन कम हियर इज दैट जस्ट आफ्टर वी सेलेक्ट कि हम कौन सी टेबल से हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, वी कैन टेल कि वाया
वी कैन टेल विच टेबल आई वांट टू जॉइन इट विद. सो फ्रॉम के बाद आपका जॉइन लगता है. जॉइन के बाद फिर आप उसमें क्वेरी लगाते हो कि कैसे उसे फिल्टर करना है. फिर फिल्टरिंग के बाद आप ये देखते हो कि उसके कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं. फिर उसमें हमें डिस्टिंक्ट लगाना है. डिस्टिंक्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है. फिर फाइनली जो हमारा रिजल्ट सेट बनता है उस पर हम ऑर्डर बाय लगा सकते हैं. और फाइनली फिर हम लिमिटेड ऑफसेट लगा सकते हैं. जस्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन of the query, like which steps happens and then what steps happens next. So this is about that. Now this is about the inner join. So if you run some query something like this, you have to tell key inner join and then inner join with what table and then the criteria of it. Now we do the left join. अब left join का मतलब क्या है? Left join में again हमने we are doing the same thing. Left join में ना हमारा left वाला जो पहला टेबल है उसको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है. तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो हम इसके रो पे आए. हमने देखा कि भैया ये हमारा क्राइटेरिया अगेन द राइट इज द सेम ऑन स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू रोल आईडी. सो वी सी फॉर दिस रो वी गो हियर, डज इट मैच? यस डज मैच. तो हमारा ये हमारा एक रिजल्ट सेट में एक रो बन जाएगा. फिर हम एक दूसरे पे देखते हैं, हाँ ये बन जाएगा. तो ये हो गया. तो हमारे पास से 2 रो आ जाएंगे. फिर हम इस पे देखेंगे कि क्या इस रो पे कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा. तो अब क्या करें? तो होगा क्या कि आपके टेम्पररी रिजल्ट सेट में होगा 2 Ankit, role ID will be null and custom name will be null. And then for 3 Smriti, again 3 Smriti से हम देखेंगे तो 3 French and then 3 Smriti के लिए 3 Spanish. तो हमारे पास 5 रो बन जाएगी. 1 Anuj, 1 Math, 1 Anuj, 1 English, then 2 Ankit, null, 3 Smriti, 3 French, 3 Smriti, 3 Spanish. And then from there we want to get the name and the course name. So like I said, ये 2 आपके आ गए, फिर 2 इसके आ गए और फिर अंकित और null आ गया. राइट. सो दिस इज हाउ द लेफ्ट जॉइन वर्क्स. बेसिकली लेफ्ट जॉइन में आपके जो लेफ्ट वाली टेबल स्टूडेंट है उसी सारे के सारे तो आने ही है. दैट्स इट. राइट. राइट वाला हम नहीं देख रहे, जो मैच हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं. उसके बाद जो जिसका डेटा राइट वाली टेबल पे नहीं है उसको फिर क्या कर रहे हैं, उसके लिए राइट टेबल की वैल्यूज नल हो जाएगी, विच बेसिकली मीन्स की द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द कोर्स टेबल. Similarly, right join, how does right join works is like this. So and this is what it looks like, the left join, like student का पूरा डेटा स्टूडेंट की टेबल को हम लोग काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पे. दैट इज वॉट लेफ्ट जॉइन मीन्स. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट जॉइन. राइट जॉइन में क्या होता है कि यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि यहाँ पे हम लोग इस पे आए. ठीक है, तो हमने इसको देखा कि सॉरी राइट जॉइन में ऐसा होता है कि हम इस टेबल पे देख रहे हैं. तो 1 मैथ, राइट, एंड द क्राइटेरिया इज स्टूडेंट आईडी इज रोल आईडी. तो 1 मैथ पे क्या है, इस पर कोई मैच कर रहा है? यस मैच कर रहा है. राइट. तो क्या होगा, 1 अनुज 1 मैथ आपके रिजल्ट सेट में आ जाएगा. फिर 1 मैथ और किसी से मैच नहीं कर रहा, तो लेट्स वी विल गो टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो में देख रहे हो 1 इंग्लिश किसी से मैच कर रहा है? यस कर रहा है. तो 1 इंग्लिश 1 अनुज. राइट. एंड देन 1 इंग्लिश इज नॉट मैचिंग विथ एनीवन. सो वी हैव 2 rows here. Now we check for the 3 French role ID is matching to student ID. Yes, only for this row. तो ये भी हमारे पास आ जाएगा. फिर हम इसके देखेंगे तो ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा. तो अभी हमारे पास 4 रो आ चुकी है. 4 Italian, right? So this is very interesting that role ID has a 4 value and the course name is Italian, but no student has taken it, right? So no student has taken it, or maybe some student with ID 4 has taken it, but now he has left the college or something like this. We can take off like that. है ना. तो होगा क्या कि हमारे पास जो राइट वाली टेबल है ना, इसके सारे रो हमारे पास आउटपुट पे होने चाहिए. लेकिन 4 इटालियन के लिए तो कोई वैल्यू है नहीं स्टूडेंट में. तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास होगा 4 इटालियन नल एंड नल. सो दैट्स व्हाई वी हैव नाउ 5 rows here and this is what it looks like. And then for the left column that we have taken from the left table, which is the student one, इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू नल हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट राइट जॉइन मीन्स. राइट जॉइन में बेसिकली हमारे पास जो राइट वाला टेबल है उसके हम लोग एक रो हमारे पास होनी ही चाहिए. राइट. अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज है तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, लाइक 1 मैथ और यहाँ पे 1 अनुज और भी आईडी का अगर कोई दूसरा बंदा हुआ, विच इज अ रेयर केस. बट द आइडिया हियर इज कि दिस राइट टेबल के हर रोज हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए, और दोज दैट आर मिसिंग इन द स्टूडेंट टेबल दैट विल बी नल एंड नल. सो एंड लेफ्ट वाले केस में क्या होगा कि राइट वाले के लिए नल वैल्यू हो जाएगी. Now what does full outer join means, right? Full outer join basically is nothing, it's just that we do the left join, we do the right join, and then obviously with the left join हमारे पास intersection तो आ ही जाएगा. Right join के साथ साथ भी हमारे पास एक और intersection आ जाएगा, and then we have to just subtract the intersection between that. So this is what it means. So basically 1 अनुज के वो दोनों आ गए, फिर then 2 अंकित के लिए नल हो जाएगा, एक अंकित नल. एंड देन यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट जॉइन पर आपने देखा होगा कि हमारा क्या रिजल्ट सेट आया था, ये आया था. राइट जॉइन के लिए हमारा वो रिजल्ट सेट आया था.
फिर इसमें से जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, दीज 4 वैल्यूज आर इंटरसेक्टिंग, तो ये हमारा ट्वाइस आ जाएगी, ये जो वैल्यूज है ना ये हमारे आउटपुट में डबल आ जाएगी, अंकित अनुज मैथ, अनुज इंग्लिश, अनुज मैथ, अनुज इंग्लिश, क्योंकि 2 बार इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। अगर हम लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को प्लस कर दें तो उसमें से हमें एक इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। एंड फाइनली वी विल बी एंडिंग विद कि 1 अनुज के लिए 1 मैथ हो गया, 1 अनुज के लिए 1 इंग्लिश हो गया, देन 2 अंकित के लिए नल हो गया, 3 स्मृति के लिए 3 फ्रेंच, 3 स्मृति के लिए 3 स्पेनिश, एंड देन फाइनली 4 इटालियन के लिए या आप कुछ नहीं है तो नल हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 ये 5 और एक 6 कॉलम आ जाएगी। बेसिकली अंकित और इटालियन दोनों हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फुल आउटर जॉइन एंड द सिंटैक्स इज फुल आउटर जॉइन। बेसिकली जॉइन के आगे यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, लाइक फुल आउटर जॉइन। यहाँ पे हमने देखा था कि वी यूज द राइट जॉइन, यहाँ पे हमने देखा था कि वी कॉल इट द लेफ्ट जॉइन। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो through some real world examples, and also we'll do it in the PG admin as well. Right now I just wanted to go through the theory once. I hope you like this video about joins. So join is nothing, basically वो आपको अलाउ करता है कि हमारे मल्टीपल टेबल है ना, तो उसके डेटा को हम कैसे कंबाइन कर सके। सम क्वेश्चंस लाइक एक स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स ले रखे हैं, राइट, या फिर एक स्टूडेंट के कितने मे बी कौन कौन से ग्रेड मार्क्स आ चुके हैं, तो ग्रेड वुड बी इन अ डिफरेंट टेबल एंड स्टूडेंट विल बी इन वन टेबल. So those kind of combination that we want to do, this is what we can do with join. And you have to think like inner join is one example, left join is another, right join is one, and then we have the full outer join. So these 4 joins are there, and we will see the next video through some examples to really complete our understanding of what joins are. So thank you guys. I'll see you in the next one. Bye.